Good morning, children. So, we are in lecture number 4 of title 9, that is called topic 9. What is the title of the topic? Fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy. Okay, children? Now see, up to 3 lectures, let us go for recap. Up to 3 lectures, I have taught you what is meant by fundamental rights, what is meant by fundamental duties, and we are also talk about directive principles of state policy. Out of these 3 topics, we have discussed about just first topic called fundamental rights. Am I right, children? We have talked about fundamental rights. Now see, as per Constitution, fundamental rights are universal rights for the enhancement of a citizen, you know that. For the all-round development of a citizen, certain rights are given by constitution of different nations to different citizens. Every citizen has a right to grow. Why? Because we are living in a democratic world. If you find out, majority of the countries of the world are having democratic setup of government. And you children well know what is meant by democracy. Of the people, for the people, by the people. Because we are living in the age of elected government. Selected government nahi. An elected government must be responsible government. Understood? This is all known to you. Basically, after formation of government, what are the aspirations of the citizen? What do citizens wish? What is their, you can say, aspirations? उसकी इच्छाएं क्या होती है? उसके सपने क्या होते हैं? वो अपने डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? वो सब पूरा करना जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है उसकी जिम्मेवारी होती है. It is a responsibility of that government to satisfy all the dreams which are aspired by a citizen. Right? ये first thing हुआ. Second thing, after World War II, these fundamental rights were given to each and every nation by UN. Because when the constitution of UN was formed, these fundamental rights were put forth in constitution of UN. And as time passed, you know UN was formed in 1945. But in 1948, that is 10th December 1948, when UN made compulsory for all the member nations who were the members of UN to follow the fundamental rights. Hence, each and every country's constitution accepted these rights. क्योंकि यूएन में एक शर्त रखी गई थी कि जो भी कंट्री यूएन का मेंबर बनता है उसको यूएन की कई शर्तें का पालन करना पड़ेगा. सही बात है? और इसमें यह भी एक शर्त थी कि जो भी कंट्री उसका मेंबर बनता है वो अपने सिटीजन्स के लिए क्या कर सकते हैं. तो ये फंडामेंटल जो राइट्स है वो बेसिकली किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है. दिस राइट्स आर गिफ्टेड बाय यूएन टू इट्स मेंबर नेशन एंड ईच एंड एवरी मेंबर नेशन हैज टू फॉलो दिस. तो ये तो सीधी सी बात हो गई कि यूएन के आज 192 मेंबर्स हैं. तो 192 मेंबर्स को कंपलसरी ये फंडामेंटल राइट्स फॉलो करने पड़ते हैं. सही बात है? ओके.
Now, there are 6 fundamental rights, you know. अब हमारी बात करते हैं. There are 6 fundamental rights gifted to citizen. These 6 fundamental rights ensures a person's growth, development, freedom. Why there is a need of fundamental right? ये मेरा पहला सवाल था पहले लेक्चर में. What is meant by fundamental right? So let me recap that thing. Fundamental rights are those rights which not only give a person his or her basic existence, but also overall development in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow. आया समझ में? This is the clear-cut definition given by UN regarding fundamental right. हर एक इंसान का विकास होना चाहिए, हर एक इंसान की तरह ट्रीट होना चाहिए, हर एक इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और हर एक इंसान मुक्त समाज में रहना चाहिए. अगर ये सब चाहिए तो उसके पास कोई अधिकार होने चाहिए कि भाई अगर उसको ये अधिकार मिल गए तो वो अपना अधिकार का उपयोग करके अपना डेवलपमेंट कर सकता है. और ये अधिकारों को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. पक्का? ओके. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट 6 fundamental right. Right number 1, right of equality. All, in short I will explain to you, then we'll go to our main topic. All rights, all citizens are equal in the eyes of law. Government does not discriminate any citizen on the basis of caste, creed, religion, sect. Right? No one can be discriminated. Next, each and every citizen is given equal opportunity. In pre-era, that is called before independence, the titles which were given by British, which created imbalance in the society, which created ups and downs in the society, were totally abolished. Only the specific titles recommended by government are used, because government clearly sees, constitution clearly sees that that does not create any class conflict, any difference between upper class and lower class. All are equal. कानून सबके लिए बराबर है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती चाहिए. सरकारी नौकरियां लगती है तो सबको जॉब मिलती है. Even backward classes are taken into consideration, and there is a specific provisions made for backward classes as a part of right of equality, कि उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले. कि आज़ादी के पहले कई पिछड़े समाज थे, कई बेचारे अनटचेबिलिटी के शिकार हुए, शोषित हुए, खूब पीड़ा सहन की है. अब नहीं, अब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबको एक समान देखने का. तो ये राइट को बोलते हैं हम राइट ऑफ इक्वालिटी, जो मैंने आपको समझाया था. राइट. सेकेंड राइट था राइट ऑफ फ्रीडम, और ये राइट ऑफ फ्रीडम में 6 सब राइट्स है. इसके तहत इंसान अपने फ्रीडम का यूज कर सकता है. मतलब राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, राइट टू carry out any legal profession which he or she wishes, right to get settled in any part of a nation, right? Then right to assemble peacefully
अपना जुलूस निकाले, अपना सम्मेलन करवाए, अपनी सभाएं करवाए, एंड राइट टू फॉर्म यूनियंस। क्यों? कि उसका ये बेसिक अधिकार है। दैट कम्स इन द राइट ऑफ फ्रीडम। देन इट केम टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नो वन इज ग्रांटेड टू एक्सप्लॉइट अदर पर्सन। यू कैनॉट एक्सप्लॉइट एनीवन। आया समझ में? आज हमारे राइट टू एजुकेशन है हमारे देश में। मैंने आपको बोला था, थोड़ा भावुक भी मैं हो गया था, कि हमारे देश में बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन का कानून है, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि दुनिया के सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर भारत में है। तकरीबन भारत में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे लोग, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, वो समय में वो बच्चे अपने मासूम कंधों पे पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी कठिनाई कोई नहीं हो सकती। अंडरस्टूड? दैट इज अ बोल्ट ऑन ए सोसाइटी। कलंक है हमारे समाज पे कि जो बच्चा आज पूरी तरह अपना नाम भी नहीं बोलता, पूरी तरह उसने दुनिया भी नहीं देखी है, उससे पहले दुनिया ने उस पर जिम्मेवारी थोप दी है। वो बच्चा कहां से पढ़ेगा, कहां से उसका ग्रोथ होगा? अगर चाइल्ड नहीं पढ़ेंगे, चिल्ड्रन आज नहीं पढ़ेंगे, तो कल का सिटीजन कैसे बनेंगे? तो उज्जवल भारत का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि चाइल्ड इज अ फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। मान लो कि आज हम देश के हैं, तो आप बच्चे लोग कल हो हमारे देश की। आप लोग अभी पढ़ते हो, खाते हो, पीते हो, अपनी जिंदगी जीते हो, ताकि कल आप आगे बढ़ो ना। कल हम रिटायर हो जाएंगे, आप हमारी जगह पे आ जाएंगे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स है घर पे, वो गई काल थी हमारी। हम लोग हैं, आपके पेरेंट्स आज है, आप हमारा भविष्य हो। अगर भविष्य धुंधला हो जाता है तो देश का क्या होगा? ये बात हुई। सेकेंड, अ पर्सन इज टू बी पेड मिनिमम वेजेस। सरकार के हिसाब से उसके कम कीमत में आप किसी को काम नहीं करवा सकते, लेकिन ये कानून भी नहीं चलता बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। सबको काम चाहिए, सबको रोजी रोटी चाहिए, और इसीलिए आज इंसान को मालूम है मैं शोषित होता हूं, आई एम गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, बट स्टिल ही और शी is quietly working. क्यों? Because they are having responsibility of family. They act as a beast of burden. Understood? You cannot force anyone to work without pay. ब्रिटिश के जमाने में जब जमींदारी सिस्टम थी, तो पूरे गांव की जमीन एक ही इंसान के पास थी, जिसको हम जमींदार बोलते हैं, और पूरे गांव के किसान मजदूर उधर खेतीबाड़ी करते, और पूरी कमाई जमींदार खा जाता। उन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब हासिल नहीं हुई थी। फोर्स्ड लेबर, ये सब खत्म हो गया बिकॉज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आया राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वो तो बेसिक है कि वी कैन फॉलो द रिलीजन ऑफ आवर चॉइस, वी कैन प्रिजर्व आवर स्क्रिप्ट्स, वी कैन गैदर आवर पीसफुल गैदरिंग्स, we can take out our religious processions,
जैसे रथ यात्रा निकलती है, बराबर है? कई सारे ऐसे, मान लो मोहर्रम की सेलिब्रेशन होती है, क्रिसमस की सेलिब्रेशन होती है, बराबर, दशहरा की सेलिब्रेशन होती है, बिकॉज इट इज अवर राइट। क्योंकि हिंदुस्तान में कई धर्म के लोग रहते हैं। पोंगल की सेलिब्रेशन, ओणम की सेलिब्रेशन, बैसाखी की सेलिब्रेशन, ईद की सेलिब्रेशन, सब कुछ होता है ना भैया। सो इट इज कंसिडर्ड राइट, एंड पर्सन इज फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। इसमें स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करते। स्टेट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते, किसी भी धर्म को फाइनेंस नहीं कर सकते, बराबर है? धर्म अपनी जगह पे, सरकार अपनी जगह पे। तो दिस वॉज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इट इज कॉल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। Everyone has a right to educate. Everyone has to right to preserve its own culture and tradition. And this legacy goes on because we are the oldest civilization of the world. In 10th standard social science you will study what is meant by Indian culture, and we are proud of our culture. हमारा कल्चर दुनिया का सबसे पुराना कल्चर है। दुनिया को सभ्यता हमने सिखाई है। What is meant by civilization we have taught to the world. So it is our right to preserve all these things as a fundamental right. Now we are coming to sixth right, that is called right of constitutional remedy. What is meant by right of constitutional remedy? These 5 fundamental rights जो भी मैंने आपको बताए, right of equality, right against exploitation, preservation of cultural and educational right, right of religion, right, और छठा राइट कौन था? राइट ऑफ फ्रीडम। ये जो 5 राइट है, अगर ये 5 में से एक भी राइट आपको नहीं मिलता, मान लो कि आपका राइट ऑफ फ्रीडम का राइट आपको नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है कि मेरी फ्रीडम पे कर्टेल लगा है, मैं जो धर्म मानना चाहता हूं उस पे पाबंदी लगती है, कोई लोग मुझे रोक रहे हैं, कोई लोग मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगे तो किसी भी सिटीजन को, तो he or she can go to the court of law because this is a constitutional right, right of constitutional remedy. तो वो ये सब हक राइट पाने के लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में वो अपनी फरियाद दाखिल करें कि भाई मैं इधर का रहने वाला हूं, ये मेरा नाम है और मेरा ये राइट मेरे को नहीं मिल रहा है। Then court will order police department to get into inquiry कि जो ये फरियाद आई है आप उसका जांच करो। डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है और अगर जांच सही है और वो बंदा सही बोल रहा है तो कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट दिलवाएगा जो राइट आपको नहीं मिलता। बिकॉज यू सी, जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स all work under the aegis of Supreme Court, and Supreme Court is the guardian of Constitution, and Supreme Court sees that each and every citizen gets his or her fundamental right. It is the moral duty of a Supreme Court, right? तो जो लोग राइट जिसको नहीं मिलता उसमें बाधाएं डालते, अवरोध पैदा करते हैं, तो चेतावनी दी जाती है
हो सके तो उसको सजा भी मिलती है जो लोग उसके साथ अन्याय करते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपना फंडामेंटल राइट गंवाना नहीं पड़े। आया समझ में? ये इसका सेंट्रल आइडिया था, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अंडरस्टूड? एंड हेंस when our constitution was framed, when this right was taken into consideration, our constitution framer Baba Sahib Ambedkar, he has said that this right is a soul of constitution. ये right हमारे constitution की आत्मा है। इसके जरिए हर एक हिंदुस्तानी को अपना अधिकार मिलेगा, हर एक हिंदुस्तानी खुशहाल जिंदगी जी सकेगा, हर एक हिंदुस्तानी अपने आप से खुश रह सकेगा। सो आउट ऑफ दिस 6 फंडामेंटल राइट्स विच आई हैव टॉट यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम राइट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। अगर ये राइट यूज होता है तो अपने आप अदर 5 राइट्स यूज होते हैं। अगर ये राइट नहीं यूज होता तो पिछले 5 राइट्स की कोई कीमत नहीं है। आया समझ में? सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल। दिस राइट इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज an important GR which I am supposed to give you in homework. I'm supposed to ask you in test. Be clear. Okay? Now let us see. Page number 68. आ जाओ आप 68 पे. Right of constitutional remedy. No matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, there remains no meaning in such freedom. आप जितने भी कानून बना लो, लेकिन उसका पालन नहीं होता है तो वो कायदे की कोई अहमियत ही नहीं है। कायदा बनते हैं पालन करने के लिए, अगर उसका पालन नहीं होता है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। है समझ में? Therefore, a provision has been made in Constitution for the implementation of these rights, and under it, a writ in a Supreme Court. Writ means petition, अर्जी। Underline करो आप। A writ in a Supreme Court can be made for the violation of the fundamental right. अगर किसी बंदे का 5 में से एक भी राइट फॉलो नहीं होता है, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं और कोर्ट उसको न्याय दिलवाएगी, उसको राइट दिलवाएगी, अगर सही है तो। झूठ मूठ की क्या आप अर्जी करो, झूठ मूठ की फरियाद करो, वो गलत है समझ में? दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रेमेडी. इट इज कॉल्ड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. द सुप्रीम कोर्ट plays an important role in protecting the fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट एक एक इंसान का फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखते हैं। ऐसा समझ में? एंड फॉर दिस, इफ द कोर्ट फाइंड इट नेसेसरी, देन इट कैन गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड डिक्री. डिक्री मीन्स ऑर्डर, फाइनल जजमेंट. अगर किसी ने फरियाद की, सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाएगी और इन्वेस्टिगेशन अगर सही निकला तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, मतलब दोषित को सजा मिलेगी, और जो बंदे को कानून जो राइट्स नहीं मिलता उसको राइट्स सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगी. और हम आपको मालूम है कानून से बड़ा कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का तो सबको मानना पड़ेगा. The apex court. Apex court means Supreme Court. The apex court is vested with the power given by Constitution. Nobody can oppose it. कोई इसके खिलाफ नहीं जा सकता. If a person puts a complaint against any state
for the violation of any fundamental right, then the Supreme Court can exercise this right. अभी मैंने बोला ना, कोई भी इंसान कोर्ट में जाके फरियाद करे कि ये मेरा राइट नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट अपने ध्यान में लेगी वो राइट, वो फरियाद को निकाल करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन सही निकला तो बंदे को न्याय मिलेगा। इतनी कड़ी व्यवस्था है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इम्पार्शियल है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इम्पार्शियल है, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करती, है समझ में। डॉक्टर भीम बाबा साहेब आंबेडकर हैज कंसिडर्ड दिस राइट एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सारे राइट्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये आत्मा है। आपको जैसे मालूम है, अगर आत्मा मर जाती है, मतलब आत्मा नहीं मरती, आत्मा चली जाती है तो शरीर का कोई कीमत नहीं है। अगर ये राइट चला गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा हुआ ना, बिकॉज दिस राइट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट, राइट? If the state legislative assembly frames any laws which violates the fundamental rights or not in a congruence of the Supreme Court can stop it. कोई स्टेट ऐसा कानून बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट वो कानून पे रोक लगा सकते हैं कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हो, स्टॉप इट। Thus, this right provides an opportunity to any of the citizen to approach court for the violation of fundamental right. है समझ में? The Constitution provides the fundamental rights to every Indian citizen. These rights are given against the government, center and state, both government. The fundamental rights are applicable to all the citizens at all time, right? But it can be suspended during the time of emergency. अगर देश में इमरजेंसी लागू होती है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। है समझ में? फॉर अ टाइम बिंग दिस राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी देश में है तब कोई इंसान ऐसा नहीं बोलता हमारे फंडामेंटल राइट है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तब सारे फंडामेंटल राइट्स कट किए जाते हैं। है समझ में? सो एनी स्टेट कैन नॉट फॉर्म एनी लॉज which take away the fundamental rights of a citizen. तो ये हमारा पहला टॉपिक था, what is meant by fundamental rights of a citizen। 6 फंडामेंटल राइट्स, और जो छठा फंडामेंटल राइट था वो सबका बाप था। 6th फंडामेंटल राइट, that is called right of constitutional remedy, वो is the soul of constitution। ये राइट के इस तहत ही आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है। आपको मालूम है, अगर आत्मा चली जाती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो अगर ये राइट का यूज नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, कायदे कानून का कोई मतलब नहीं है। कोई भी मनमानी कर सकता है, कोई भी ये राइट को तोड़ सकता है। अंडरस्टूड? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वी आर गिवन विद दिस स्पेशल राइट। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। नाउ वी आर कमिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज, अवर LQ। वो 4 मार्क का टेस्ट में एग्जाम में आएगा। जैसे हमारे राइट्स है तो हमारी ड्यूटीज भी होती है ना। तो हमारी ड्यूटीज क्या है? कब हमको फंडामेंटल ड्यूटीज मिली, कब हमको ये जिम्मेवारी मिली? ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज वन कॉइन विद 2 साइड। सिर्फ राइट्स ही नहीं होते ड्यूटीज के बिना, और सिर्फ ड्यूटी भी नहीं होती है राइट्स के बिना, दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो हमारे पास जो अगर राइट्स है तो एज अ सिटीजन देयर आर सर्टेन ड्यूटीज टू बी फॉलोड, वो भी हमको फॉलो तो करनी पड़ेगी ना। आया समझ में? The people of India were more aware
of the rights and duties since ancient times. Just as the citizen are given various fundamental rights, various fundamental duties are incorporated by Constitution Amendment in 1976. 76 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया तब ये सारी चीजें सामने आई. The fundamental duty aims to inculcate love for nation, national integrity, various high ideals and values, awareness among the citizen. ये सारी चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में आ गई. Thereby helping in developing a nation. Every citizen of India should contribute towards the protection of national unity, integrity and sovereignty. आया समझ में? So that there remains peace, security, communal harmony and accord. Accord means principles. ये सब चीजें सलामत रहे, कायम रहे और देश हमारा शांति से बना रहे. Right? There are fundamental duties given. Number 1, to abide the constitution and respect the ideas of institution, the national flag and national anthem. ये पहली हमारी fundamental duty है. जब हमारा राष्ट्रगीत बजता है, जब हमारा नेशनल एंथम बजता है, हम कहीं भी है हम अटेंशन में खड़े हो जाते हैं. अगर नहीं है तो उसका अपमान है. हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको हम सैल्यूट करते हैं. आप आर्मी में मिले, पुलिस डिपार्टमेंट में जो नेशनल एम्बलम इधर दिया गया होता है, क्यों? कि हमारे सर पे होते हैं. वो सर से नीचे नहीं हो सकते. It is a mark of respect. It is our duty to respect it. Right? Number 2, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle and freedom. इसीलिए आप 3 साल से हिस्ट्री में पढ़ रहे हो ना, our national freedom struggle. ब्रिटिश आए, कैसे हमको गुलाम बनाए, फिर कैसे आज़ादी की जंग छिड़ी, कितनी कितनी यातनाएं हमने सही, कितने कितने वीर शहीद हुए, कितने लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, तब जाके ये आज हमारी आज़ादी प्राप्त हुई है. और डिफरेंट इंसिडेंट्स यू स्टडीड इन फ्रीडम स्ट्रगल. यू स्टडीड अबाउट बारदोली सत्याग्रह, यू स्टडीड अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, यू स्टडीड अबाउट दिस धरासना सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये सब आपने पढ़े हैं और ये पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आनारी नस्ल को ये पता चले कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है. आज़ादी के लिए हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है. आज हम आज़ादी की सांस ले रहे, आज़ाद भारत में जिंदा है, लेकिन ये आज़ादी के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितनी भारी कीमत चुकाई, वो तो हमको पता चलना चाहिए ना. तब हम कह सकते हैं बिकॉज वी आर थैंकफुल टू दैट पीपल. और उसकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं. इट इज आवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. अंडरस्टूड? थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. किसी भी हालत में भारत माता का शीश नहीं झुकना चाहिए. मातृभूमि की रक्षा के लिए हर एक सिटीजन का दायित्व है, वो किसी भी हद तक जा सकता है. अपना देश कभी गुलाम नहीं होने देता. अंडरस्टूड? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन नीडेड. एक सिटीजन भी हथियार उठा सकता है जब देश की जरूरत होती है. ऐसा नहीं कि आर्मी ही हथियार उठाती है, एक सिटीजन भी हथियार उठा लेता है. क्यों? कि उसके देश की इज्जत का सवाल है, उसके देश की आजादी का सवाल है. अंडरस्टूड? टू प्रमोट हार्मनी
and the spirit of common brotherhood among all the people of India, forgetting religion, linguistic differences, or regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory against women in the dignity of women. सब कुछ भूल के देश का हित सर्वोपरि हित होता है और महिला को भी समाज में इज्जत मिलनी चाहिए. डेरोगेटरी मीन्स भेदभाव. महिला के साथ, लेडीज के साथ भेदभावपूर्ण वर्तन नहीं होना चाहिए. उसको भी इज्जत मिलनी चाहिए, उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए. और हम देते भी है. हम सब समान हैं, बराबर है. सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. There should be no breach of this all things, right? Dignity of woman should be maintained. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है और जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने का है. प्लेसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, त्याग के साबरमती आश्रम है, जलियांवाला बाग है, ताजमहल है, साउथ में कितने बड़े बड़े टेम्पल्स है. वो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, फिजिकल हेरिटेज. वो हम सबको प्रिजर्व करना पड़ेगा ताकि हम दिखा सके कि भारत कितना महान देश है और था भी. राइट? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन टुवर्ड्स दिस ऑल. राइट? सबके लिए दया करुणा होनी चाहिए और सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए. To develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Reform means change. सिर्फ धर्म से देश नहीं चलता. We have to accept scientific thinking. Understood? We have to accept that thinking. And if we will accept that thinking, then and then only we can proceed. Then and then only we can become a part of Renaissance. वरना तो मर जाते हैं. आए समझ में? 9th, to safeguard the public property and abjure violence. Abjure means give up violence. दंगे फसाद होते तब नेशनल प्रॉपर्टी को कितना नुकसान करते हैं लोग. ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आए समझ में? To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Endeavor means efforts. सतत हमारा देश आगे बढ़े, सतत हमारा देश प्रगति करे, सदा ही भारत माता का शीश अभिमान से न टट्टार रहे, वही हमारी कामना होनी चाहिए. Understood? Who is the parent or guardian to provide opportunity for education to his child, or in that case B word between the age of 6 to 14. This is the fundamental duty of a parent, that they cannot employ their child at the age of studies, because every child is given right to education. A child between 6 to 14 is compulsorily made educated. Even parents cannot stop them. तो हर एक माँ बाप को यह समझना चाहिए कि बच्चा हमारी जागीर नहीं है, वो नेशनल प्रॉपर्टी है और नेशनल प्रॉपर्टी को हमें कभी नुकसान नहीं करना है. बच्चे को उसकी जिंदगी देनी चाहिए. Understood? These are all the fundamental duties which we are supposed to follow. Now underline. 6th January is celebrated as Fundamental Duties Days in India. Some duties are backed by law. The person violating it can be sentenced. Sentence means punished. आज कई ड्यूटीज में लॉ है, अगर ये बंदा कोई ये ड्यूटी फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिलती है. जैसे नेशनल एंथम का अपमान नहीं कर सकते, हम तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते, उसको सजा मिलती है. राइट? It is a duty and a responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated, like untouchability, drudgery, child labor, woman exploitation, dowry,
female infanticide, ill customs, superstitions. All these things must be removed from in 21st century. अगर ये सारी चीजें चली गई तो ही श्रेष्ठ भारत का निर्माण पॉसिबल है, वरना पढ़ने से कुछ नहीं आता. हमको दिमाग से पढ़ना पड़ेगा, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी. अगर हमारी सोच बदल गई तो हम अपने सपनों का भारत खड़ा कर सकते हैं. ऐसा समझ में? These duties are directive and converging us that what a sensible and aware citizen must do. Understood? As a sensible citizen, it must be done. Is it clear? If citizen propagates the importance and utilization of fundamental duties, then future citizen developing the feeling of national responsibility, international brotherhood, just an exploitation-free society can be created. Understood, children? So, with this we are ending our lecture, right? Now it is your time to take your homework. Come on. Number 1. Question number 1. Right to constitutional remedy is a soul of our Constitution. Of our Constitution. Question number 2. Mention the fundamental duties of a citizen. Right? These are 2 questions for your homework. Right to constitutional remedy is the soul of our Constitution. And second, mention the fundamental duties of a citizen. It's LQ. So with this, we are ending this lecture. Right? See you in new lecture. That is lecture number 5. Till then, children, goodbye. Take care.